let's take a look at what is corporate governance, because whenever we try to determine or whenever we try to understand how our organization is going to operate, we must understand the corporate governance principles as well. आइए पहले समझते हैं ये है क्या. There is a basic human psyche that whenever we have power with us, whether it's financial power or whatever kind of power we have, we tend to misuse it. Not all the people, but there is always this tendency to utilize the power that we have in our own interest. हुआ क्या that जैसे जैसे organizations बड़ी होती गईं, तो उनके पास financial power, उनकी financial muscle भी strong होती गई. There are certain countries in the world जिनकी annual sales turnover बास third world countries के annual budget से ज़्यादा होते हैं. Which means that their chief executives, the people who are running the show, are sort of they are more financially powerful than a whole country. जब इतनी powers किसी individual के पास होंगी, तो फिर there is bound to be a feeling or there is bound to be a tendency to misuse this financial power. अब इसको control कैसे किया जाए? इसको decide कैसे किया जाए कि who should be actually making the decisions and how we are going to make sure that वो जो actual stakeholders हैं, वो जो shareholders हैं और बाकी stakeholders हैं, उनके interest को violate नहीं किया जाएगा. इस चीज को cover करने के लिए, इस problem को balance करने के लिए हमने कुछ principles define किए जिनको कहा जाता है principles of corporate governance. JSW, Johnson, Schultz and Whittington, इसमें भी उनका एक particular role है और उन्होंने कहा that corporate governance framework should explain and should decide that organization किसको serve करने के लिए बनी है. यानी क्या उसका primary objective customer satisfaction है या उसका primary objective shareholders को खुश रखना है, या उसका objective ये है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, जिसमें इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी हो सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी हो सकती है, यकीनन उसमें शेयर होल्डर्स भी हैं, या उन सबको खुश रखना है. ये वो डिसीजन है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू हम जिसके मुतालिक फैसला करते हैं. JSW ने एक और बात भी कही. उन्होंने कहा कि जनाब, वी मस्ट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. यानी क्या वो चेयरमैन होगा बोर्ड का, या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यूनानिमस फैसला करेगी, या चीफ एग्जीक्यूटिव के पास इतनी पावर्स होंगी कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन की जो डायरेक्शन है उसको सेट कर सके. तो JSW ने हमें कहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू हम दो चीजें क्लियर करेंगे. नंबर वन, हाउ वी आर गोइंग टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड नॉट ओनली दैट, हु इज गोइंग टू कंट्रोल देम, हु इज गोइंग टू कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन. ये दो मेजर फैसले हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू हमने आइडेंटिफाई किए हैं. See, the idea is that one individual, any one individual, वो chairman हो, वो chief executive हो, वो board of directors का कोई member हो, must not be very powerful or must not have the ultimate powers. There has to be a check and balance on every individual, including the chairman. तो अब corporate governance ने एक ऐसा हमें setup बना के दे दिया, हमें एक ऐसी guideline दे दी जिसके तहत हम organization को impartially run कर सकें, जहाँ पे कोई individual अपने personal या अपने कोई वेस्टेड इंटरेस्ट को ज्यादा सपोर्ट ना कर सके, और ऑर्गेनाइजेशन के जो मेजर ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं और बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट का प्रिजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके. नाउ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत मजीद क्यों पेश आई? आपने सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और कंट्रोल तो सुन ही रखा होगा, बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं या पब्लिक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, वहां पे द ओनर्स or the shareholders are not involved in the day-to-day operations of the organization. Sometimes they don't even know what is going on in the organization. So they are the investors, they are the actual owners, but the management is in the hands of some other people. वो कौन लोग हैं? वो managers हैं जो उस organization के daily routine वाले decisions और strategic decisions ले रहे हैं. Now, since there is a separation of ownership and control, we need to have some kind of a framework to protect the rights, to protect the interests of the shareholders. और वहाँ पे corporate governance framework, incorporate किया गया. Corporate governance में एक और चीज जो important है, जो हमें समझनी जरूरी है,
वो है रोल ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इनको हम NEDs भी कहते हैं। प्लीज रिमेंबर, इन NEDs का ताल्लुक NED यूनिवर्सिटी से हरगिज नहीं है। इनका काम क्या है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बेसिकली आर impartial people who are experts in their own domain, who are brought into the board of directors for a temporary time frame, and their role is to assist the board in making the right decisions. Sometimes जिस इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है, उस इंडस्ट्री के कुछ हिस्टोरिकल एक्सपर्ट्स, कुछ ऐसे लोग जो उस इंडस्ट्री को बहुत अरसे से जानते हैं, उस इंडस्ट्री की बहुत नॉलेज रखते हैं, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनवाइट कर लिया जाता है एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नाउ नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? दैट दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस, यानी वो बिजनेस के जो फैसले हैं उनमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन उनका रोल है एक्सपर्ट वाला। उनका रोल है कि वो गाइड करें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को व्हेन दे आर मेकिंग डिसीजंस। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी है और आप एक नई गाड़ी लॉन्च करने जा रहे हैं, दे कैन गाइड द बोर्ड in deciding which models to offer first. They can guide the board in deciding what engine technology